ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ। 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। 70 60 70 ਕਈ ਵਾਰੀ 80 90 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪਰ 70 ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਡੇਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 881 ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 200 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। जैसा मुझे बताया 280 से अधिक लोग यहाँ आए हुए हैं और ये उन गांवों के लोग हैं जहाँ पानी 5 फीट 6 फीट 8 फीट भर गया और इनको वहाँ से एक तरह से यहाँ ला करके सुरक्षित जगह में रखा है। इनकी एक बात सुन करके मुझे लगा कि ये कहते हैं कि हम और हमारे बाप दादा लगातार यहाँ रहते हैं, खेती कर रहे हैं, गिरदावरी में हमारा नाम दर्ज था, लेकिन जब कभी भी बाढ़ आती है, जब कुछ भी होती है तो हमको यहाँ से बाहर आना पड़ता है, जंग होता है तभी भी बाहर आना पड़ता है। क्योंकि रिकॉर्ड पर इसको दर्ज नहीं होने के कारण से सरकार की जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमारे नाम पर खाते की ज़मीन नहीं होने के कारण से नहीं मिलती। पर हम 70 साल से यहाँ बसे हुए हैं तो निश्चित रूप से इनकी बात में तो दम है कि इसको कैसे रेगुलर किया जाए। एकदम तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री से जरूर व्यक्तिगत उनसे बुला के बात करूँगा कि आखिर 70 साल से आपकी गिरदावरी में इनका नाम दर्ज है तो निश्चित रूप से इनको कोई न कोई सरकार की जितनी भी रिलीफ आती है
जमीन खाते दर्ज नहीं होते के कारण से इनको वो लाभ नहीं मिलता है। और जब भी जंग होता है तब भी इनको खाली करना पड़ता है, जब भी पानी आता है तब भी इनको बाहर आना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ खेती तो जहाँ है वहाँ रह जाए, लेकिन इनको कहीं न कहीं ऐसी जगह बसा दिया जाए ताकि ये जो बाढ़ का 5 फीट 6 फीट जो जगह मिलती है, अगर इसके आसपास में कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ तो बात करने के बाद ही पता लगा, एकदम डीसी साहब भी साथ है, मैंने वहाँ भी इनसे बात की थी कि भाई कोई न कोई परमानेंट हल तो इनका निकालना ही पड़ेगा, विशेष करके बस्ती को बचाने के लिए। खेती तो जहाँ है वहीं रहेगी, अगर वो पानी में भी आती है तो एक फसल का नुकसान होगा, दूसरी फसल तो कम से कम बो करके अपना पेट भरेगी। तो दूसरा यहाँ जो कुछ भी सुविधाएं दी, बच्चे भी हैं, खाने की दवाई की, वो सारी व्यवस्था तो कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में एक तो क्या है कि इनको रात को 2-2:30 बजे पानी आता है, तो मैं सोचता हूँ जब कभी भी हेडवर्क से पानी छोड़ते हैं ना, तो चाहे वो भोंग का हो, चाहे भाखड़ा का हो, चाहे रंजीत सागर का हो, वहाँ से छोड़ने और यहाँ से पहुँचने के बीच में भी कोई न कोई घंटे समय लगता है। अगर उसको परफेक्टली और जल्दी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ रिलीफ, पानी आने के पहले ही इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पानी कोई 2 मिनट या 4 मिनट में तो नहीं आता है। और खोलने वालों को पता है कि हमने कितना क्यूसेक पानी निकालना है, उनको भी ऊपर से पानी आ रहा है, उसकी नापतोल होता है। आजकल हमारे पास सिस्टम ऐसे हैं कि यहाँ व्हाट्सएप पे डालें तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लोग हैं उनको तुरंत सूचना पहुँच जाएगी। तो सूचना जितनी जल्दी से जल्दी कन्वे हो जाए ताकि समय के पहले ही मैं सोचता हूँ इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। और इनकी ये जो तकलीफ है, मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, शायद उनसे साथ भी बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, कोई अगर हल निकल सकता है नियम के तहत रहते हुए तो कोशिश पूरी करें। सर हर 2 साल बाद 3 साल बाद बाढ़ आती है, तो सारे प्रबंध पहले से क्यों नहीं करके रखे जाते? तो मैंने आपसे यही बात की, इससे प्रबंध तो पहले इतना होगा नहीं हो, लेकिन जब पानी छोड़ा जाता है या ऊपर से पानी की आवक जितनी पोंग में हो रही है या भाखड़ा में हो रही है, वो कई घंटे पहले पता लगता है। साधारणतः आजकल सब सिस्टम है, जम्मू कश्मीर से अगर पानी चला तो हमारे यहाँ कितने 15 घंटे में पहुँचेगा, 14 घंटे में पहुँचेगा। हिमाचल का पानी अगर चला है तो कितने घंटे में पहुँचेगा। मैं सोचता हूँ सिस्टम को थोड़ा सा और अलर्ट करना पड़ेगा ताकि समय के पहले, प्रकृति की इस पर तो कंट्रोल हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टि से आपदा आने के पहले आजकल सारे सिस्टम ऐसे डेवलप हो गए कि हर चीज का समय से पहले पता लगे। सर, सरकार के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने जो कैंप देखा है उनसे व्यक्तिगत भी बात की है, बच्चों को भी देखा है, तो मैं सोचता हूँ यह सिस्टम और व्यवस्था तो उनके लायक है और उनको कोई तकलीफ नहीं। उनको अपना घर छोड़ने की तकलीफ, चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ, अगर इसी तरह से घर छोड़ करके निकलना पड़ता है तो हर आदमी को ये थोड़ा सा कष्टदायी होता है। सरकार के प्रबंधों पे सर आप क्या कहेंगे कि सरकार अच्छी तरह निपट रही है के लिए जो भी किया जा सकता है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही है, सरकार के साधनों में कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार से भी मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। तो मैं सोचता हूँ मदद करने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आपदा आने के पहले हमारी तैयारी जितनी और परफेक्ट हो सकती है उसको करने का प्रयास करें। सर, भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेंटर ने 680 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, तो वो रिलीज क्यों नहीं कर पा रहे? सामान्यतः क्या है, केवल एक स्टेट को नहीं, आपदा राहत का जो कोष होता है वो हर साल का हर सरकार के पास एक लिमिट बांधी हुई है, उतना पैसा उनको ट्रांसफर होता है। उपयोग उसका तभी कर सकते हैं जब आपदा आती है, बाकी पैसा उनके पास है। कैमरामैन जिना सरबजीत सिंह, दैनिक सवेरा।